Myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss about class 11 business study, and today's topic is a startup scheme. Means startup India scheme, when it is started in our India. We have to discuss about it. आपको आज बताया जाएगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। ये आपके बिजनेस स्टडी का स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस टॉपिक का एक सब टॉपिक है, जिसके अंतर्गत ये बताया जाएगा कि ये कब लागू किया गया और इससे क्या हमें बेनिफिट है, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस वी आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, we are going to discuss about these things. So we have to start from introduction. So listen, Startup India is an initiative of Government of India. It should be started by the Government of India. We can say it should be started with the help of our Government of India. इसे किसने शुरू किया? हमारे देश के गवर्नमेंट ने। हमारे देश के गवर्नमेंट ने इसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम को स्टार्ट किया और पहली बार यहाँ लागू किया गया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑफ इंडिया द कंपनी वाज द फर्स्ट अनाउंस्ड। इसे पहली बार कब अनाउंस किया गया इसके बारे में हम जानते हैं। ये पहली बार अनाउंस किया गया किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन द स्पीच ऑन द 15 अगस्त 1960। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो बच्चों। स्टार्टअप इंडिया स्कीम हमारे देश के गवर्नमेंट के अनुसार ये बाजार में लाई गई या पहली बार ये स्टार्ट किया गया। लिखा है स्टार्टअप इंडिया इज एन initiative of the Government of India. Okay, the companion was the first announced. इसको पहली बार कब अनाउंस किया गया? by Prime Minister Mr. Narendra Modi in his speech on the 15 August 2015. पहली बार ये अनाउंस किया गया 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये प्रोग्राम स्टार्ट इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2015 को इस्टेब्लिश की गई और ये पहली बार भारत में तभी से लागू भी किया गया। इसके पहले स्टार्टअप इंडिया स्कीम हमारे देश में लागू नहीं थी, ना ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन था। स्टार्टअप इंडिया स्कीम का मतलब ये था कि हमारे देश के लोग रोजगार पाएं, अच्छे से अच्छा काम कर पाएं और इन्हें बेनिफिट भी दिया जाए, सपोर्ट भी दिया जाए, जिसके माध्यम से हमारे देश में बेरोजगारी कम हो, रोजगार बढ़े, बिजनेस एक्टिविटी बढ़े और लोग डेवलपमेंट पाएं। सो नाउ वंस अगेन यू हैव टू लिसन, स्टार्टअप इंडिया scheme was announced by our Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi in speech on 15 August 2015. Clear? Now we have to discuss what is the meaning and definition of startup. In board I had not written because the less place is there. You have to listen the lecture and make a notes. Startup is a business enterprises in the form of private limited company, partnership, otherwise any other company we can able to start in India. Otherwise, in simple words, which was started less than 5 year age, have and the annual turnover of less than 25 करोड़। इसमें ये बताया गया कि इसमें एक साल में एनुअल turnover is given inside. Once again listen, which is started from 5 year
is the annual turnover is less than 25 crore. Annual turnover less than 25 crore. It should be given. Okay? Otherwise, I will write is full. In that one, government had also announced annual turnover less than 25 crore. It is also very important part you have to learn and discuss. Don't forget it. After that, we have to read about that to the eligible and startup, the enterprises should not have formed by stapling up the recognition and its turnover should be have exceeded 25 crore since the extents. अब ये 25 करोड़ से अधिक भी हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेरियस स्कीम्स एंड raises of foundation started by Government of India. With the help of that, we can say these are the activities are followed by our government, and it is a very important part. Now once again listen, various schemes and way of fund started by Government of India. अब इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि हमारे देश के गवर्नमेंट ने अनेक प्रकार की स्कीम और फंड पाने के रास्तों को बताया. यही हमें स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत पढ़ना है, इसी को हमें जानना है. व्हाट इज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम? सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेरियस स्कीम्स. First one is given in front of you in various schemes. First one is a no inspiration. We can say under this scheme, India is taking lot of steps encouraging the startup project. इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश ने ऐसे बहुत से कदम उठाए हैं जिसकी सहायता से स्टार्टअप इंडिया स्कीम को बढ़ावा दिया जाए. ठीक है, कॉमर्शियल स्कीम्स बेनिफिट ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट. जैसे गवर्नमेंट ने आपको ऐसे बहुत से रूल्स रेगुलेशंस और ऑफर को प्रोवाइड किया जिसकी सहायता से हमें इस स्कीम को बढ़ावा दिया जाए. जैसे गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड regarding to labor law a lot of self certificate and lot of activities. With the help of that, government had provided a lot of rules and regulation. With the help of these we can able to get lot of schemes and we can able to follow our daily activity in our startup India scheme. Second one, registration. Second one we are reading registration. The government has launched mobile app. गवर्नमेंट ने इसमें एक मोबाइल ऐप बनाया जिसके माध्यम से हम अप्रैल 2016 से ये मोबाइल ऐप फ्रॉम 2016 इसके अनुसार रजिस्ट्रेशन with the help of mobile app 2016. Once again listen. The government has launched mobile app in the April. Which month? April 2016 and a portal that was allowed startup get registered in one day. इसकी सहायता से ये पता चले एक दिन में हमारा रजिस्ट्रेशन हो सके, जिस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम इस प्लान का फायदा उठा सके. ध्यान से सुन लीजिए, ये प्लान 15 अगस्त 2015 को अनाउंस किया गया आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 2016 अप्रैल 1 से अगले फाइनेंशियल ईयर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया मोबाइल ऐप के माध्यम से. ओके.
जिससे हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम को 2016 अप्रैल से हमने लॉन्च कर दिया। ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। तीसरा है आपका इनकम टैक्स एक्सपेंशन। इनकम टैक्स एक्सपेंशन इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट थ्री इयर्स। ये पहले इनकम टैक्स एक्सपेंशन को बनाया गया स्टार्ट के 3 सालों के लिए। स्टार्टिंग के सिर्फ 3 सालों के लिए बनाया गया। इसके अनुसार आपको सर्टिफिकेट दी गई कि आप अपने कामों को संचालित कर सकें। वंस अगेन लिसन, इनकम टैक्स एक्सपेंशन। Income tax expansion is available for the first 3 years. This exemption is available only after obtaining the certificate from Inter-Ministerial Board. Okay? With the help of that, we can able to do these types of all activities. Now, fourth one is given in front of you. Capital gain tax. Capital gain tax expansion, we can able to know the startup can claim capital gain tax expansion also from the first 3 years. Okay, same thing should be also is the coming inside. But next one is given in front of you. Benefit in patent. In patent cost, startup can claim on 80%. We can claim on 80% rebate. So dear students, you have to listen carefully. We can able to claim on 80% of rebate here on the benefit of portal. That means if a startup applies the patent of the government, will give 80% rebate here in the fees. 80% हमें rebate मिलता था हमारे फीस में। किसके दौरान? स्टार्टअप इंडिया स्कीम के दौरान। अगर आप 80% पैसा rebate में प्राप्त कर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? इस प्लान को अच्छे से फॉलो करने में सहायता मिलेगी। According to that, we can say faster payment registration and production for actual property rights are also provided under the scheme. It is a coming inside. After that, we are going to discuss 6th one. Fund schemes from startup. So we have to discuss. Government was announced. What the government had announced? Government has announced 10,000 crore fund. Government ने अनाउंस किया था कि 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ का फंड न्यू स्टार्टअप में दिया जाएगा और 500 करोड़ का क्रेडिट ग्रांट किया जाएगा इस स्कीम के अनुसार। मतलब 10,500 का पैसा इसमें लगाया जाना था स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अनुसार। एक बार और सुन लीजिए। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10,000 करोड़ फंड फॉर न्यू स्टार्टअप एंड 500 करोड़ फ्रॉम क्रेडिट गारंटी स्कीम। Foreign aid also is a provided startup. For example, we can say SoftBank, otherwise a lot of banks from Japan, 2 billion on Indian startup. We can say जापान ने भी इन्वेस्ट किया $2 मिलियन। इस स्कीम के अनुसार भारत में जापान ने $2 मिलियन को इन्वेस्ट किया था कि हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम को आगे बढ़ा सकें। इसके अनुसार आपको बताया जा रहा है some steps are giving in front of you. With the help of that, we can able to know these all things. First one is a given. Following are list of the 10
फंडिंग ऑपरेशन स्टार्टअप इज द हेल्प टू राइज द कैपिटल। यहाँ कुछ आपके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हो कि कैसे हमारा फंड स्कीम स्टार्टअप प्लान का बढ़ेगा। तो कुछ कारण आपके सामने लिखे गए हैं। फर्स्ट वन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग मीन्स the start business self funding is the first option or later stage investigator may get attracted. Second one is given crowded funding. After that we have to know crowded funding as a funding option. Crowded funding is the one of the newer way of funding a startup that has been gaining lot of properly latestly. It is a like taking the loan, pre-order and contribution of investment fund from more than the person at the same time. Another one is given in front of you, get angel investment. Get angel investment in your startup. It means angel investors were individual with the surplus cash and a keep interest on investigation in upcoming startups. With the help of we can know get angel investment, we are getting with the help of fund scheme for startup plan. Next one is given in front of you, get venture capital. Get venture capital for your business. It means venture capitals are properly measured fund who invest the companies that have the huge patent. We can say the usual invest is the business agencies, equity is the extent of the IBPO. With the help of that we can able to know get venture capital is also important part of our funding scheme for startup plan. Next one is given in front of you, raising money through bank loan. अब पैसे को बढ़ाना था बाजार में तो बैंक को लोन देने के लिए बढ़ाया गया। मीन्स बैंक अगर हमें अधिक से अधिक लोन बाजार में देती है तो हमारा बिजनेस क्या होगा, अच्छे से डेवलप होगा। That's why we need these types of services. Normally we can say banks are the first place and entrepreneurs to when taking about funding. आप सबसे पहले आसान शब्दों में जान सकते हैं कि बैंक को पहला माध्यम है जिसके माध्यम से हम फंड को इकट्ठा कर सकते हैं, पैसे को हम ले सकते हैं और व्यवसाय में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Next one is given in front of you, get business loan. Business loan, there is an option net banking financial companies. इसमें आपको नेट बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं जो आपको लोन देती है, जिसे कहा जाता है, ठीक है, NBFC, नेट बैंकिंग फाइनेंशियल, ठीक है, कॉर्पोरेशंस। ऐसे लोग बाजार में आते हैं और आपको लोन देते हैं। इस लोन के माध्यम से आप अपने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अनुसार अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। एंड लास्ट वन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। Means government programs are offered startup capital. The government of India has launched 10,000 करोड़। यहाँ बताया गया आपको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि 10,000 करोड़ रुपए से हम इस प्लान को स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस प्लान को 10,000 करोड़ रुपए लगा के स्टार्ट करते हैं तो हमारा व्यवसाय, हमारा प्लान कैसे चलेगा। तो पहले दिन इसमें हमने यूनियन, ठीक है,
union budget to improve startup expansion system in India. Further, the government had allowed launch various schemes such as, अब गवर्नमेंट ने एक यूनियन बनाया, उस यूनियन के अनुसार ये बताया कि हम इस तरह के प्लान को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया उस अनुसार हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए थे और 10,000 करोड़ रुपए को हम कहाँ खर्च करेंगे, तो बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। इसमें एक स्कीम बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। सी से होगा सेंट्रल, जी से होगा गवर्नमेंट, एस से होगा स्कीम। इसको हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अनुसार हम जानेंगे कि बैंक एंड आइडियाज आर इनोवेटेड प्रोग्राम्स। इसके अनुसार हमने बैंक को माध्यम बनाया, बैंक अधिक से अधिक पैसे को हमें देगा और हमारा स्कीम आगे बढ़ेगा। दूसरा था प्रदेश प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट। दूसरा इसमें था MUDRZ, ये दूसरा स्कीम था। इसका मतलब था प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम है MUDRZ। इसके अनुसार हम कह सकते हैं 10 लाख स्मॉल छोटे छोटे कंपनियों को शुरू की गई। इसके अनुसार 10 लाख छोटी छोटी कंपनियां हमारे व्यवसाय में शुरू की गई। ये सेकंड प्लान था। तीसरा प्लान था SIDBI। क्या है? SIDBI। ठीक है, ये तीसरा SIDBI। इसके अनुसार हम ये कहेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया आल्सो ऑफर बिजनेस लोन्स ऑन द सेक्टर। एंड लास्ट वन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। इसमें दोनों गवर्नमेंट ने स्कीम लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो हम अभी पढ़ते हैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। अब इसके बाद पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के अनुसार। तो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके अनुसार हमारे गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाए और हमारा व्यवसाय आगे से बढ़े। पहला है केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम था। दूसरा इनकी स्कीम है महाराष्ट्र सेंटर ऑफ इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। तीसरा है राजस्थान स्टार्टअप फीस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ यू up to now I had explained about the Startup India scheme. So now we have to revise once again. This scheme is started by our government of India. Pradhan Mantri Narendra Modi announced it on the 15 August 2015 and it should be started from April 2016 with the help of mobile app. Okay, now dear students, you have to revise, make a notes and subscribe my channel and share it to your friends. So dear students, this is the lecture and about Startup Indian scheme. So you had given me your special time. Thank you all for listening my voice and attending this lecture. Okay, you have to make a note and clearly you have to listen these all things. Okay, thank you all. Thank you.